Wherever you live, the conflict, the battle is also coming here. Death is the truth. This is the best thing that has happened in my life. The last moment, it is all the wrong deeds जो बुरे कर्म हैं आपके वो आपको याद आएंगे. I was so disappointed and sad that I'm not dying. The next 45 minutes we would always be dragging the dead bodies out. It's very good to have an opinion, but हो क्या रहा है कि opinion आने के बाद चिपकाव हो जाता है, उससे ego जोड़ लेते हैं. But if the man next to you thinks you are his enemy, you still have it, whether you like it or don't like it. There could be a time in the period in the history, probably हमारे बाद हो शायद, मेरे बाद हो, जहाँ भारत और चीन जो है वो अच्छे मित्र हैं कि मुझे तुम्हारी आस्था स्वीकार. भारत और पाकिस्तान कभी नहीं होंगे. मोर देन $1 billion lives lost. स्ट्रेट किलिंग की बात कर रहा हूं मैं. पोंगा पंडित महाज्ञानी इंटेलेक्चुअल बनके टॉलरेंस ऑल दैट आई डोंट ऑल दैट. दिस चाइल्ड विल नो हाउ. Why someone is swearing to destroy your generation, then you feel that I'm peaceful. Namaskar and Om Namah Shivaya to all. Today it's our pleasure that we have a very interesting guest with us. I will definitely introduce our guest to the audience. Before that, please do not forget to like, share and subscribe to the channel. अगर ये channel चलेगा तो आपके support से ही चलेगा. Let's introduce our today's guest. The name of our today's guest is Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha sir. So it's truly an honor to welcome sir, a Sena Medal retired, a gallantry awardee, a battle-injured war hero, and a shining example of courage, resilience, and service. He comes from a proud military family. His father too served in the Indian Armed Forces, continuing a legacy built on duty, discipline, and devotions to the nation. After serving the army for over 3 decades, Lieutenant Sir continues to inspire people beyond the uniform. He is a motivational speaker, poet, writer, influencer, and entrepreneur known for his fearless honesty and heartfelt words. He is spoken on TEDx stages in corporate halls, colleges, schools, leaving a lasting impact wherever he goes. During the COVID crisis, he once again stepped forward for the country, helping bring hospitals in Mumbai back to life, transforming it into one of the largest COVID care centers in India. It's an honor to welcome our guest, Lieutenant Colonel Manoj Sinha sir. Welcome sir to our channel, Thank you, Gaurav. podcast at the Purva Paksha channel. It's our pleasure to host you. I'm really honest. जब भी हम चैनल पे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को बुलाते हैं तो इट्स लाइक हमारा वो दिन लाइफ का एक दिन सफल हो गया, ऐसे मुझे तो लगता है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट दैट्स माय ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग. परिचय लंबा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया. नहीं चलता है सर, आपका परिचय वैसा होना भी चाहिए सर. Let's move on to our first question. Sir, what is the biggest difference between the real ground experience and what people usually believe? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं. हर नुक्कड़ कॉर्नर में इतने एक्सपर्ट्स है कि कोई जियो पॉलिटिक्स है, कोई आर्मी एक्सपर्ट है, कोई मुझे ये ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसे उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा कर दो, इसको ये कर दो. तो ये जो एक्सपर्ट्स ज्यादा हो गए करंटली ऑन द सोशल मीडिया, तो जो आप एक्चुअली सर्व करते हो ग्राउंड पे और जो रियलिटी में लोगों को दिखता है या सोशल मीडिया थ्रू या न्यूज चैनल्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है? बिकॉज देयर हैज टू बी सम बिग डिफरेंस. देखिए गौरव, डिफरेंस ऐसा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी काम जो है कोई गलत है. एक्सपर्ट मतलब दैट्स स्किल है. जो लोग इतना अच्छा स्ट्रेटजी का रिव्यू करते हैं, हेड्स ऑफ टू देम. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ देम. समझ और ये सिर्फ इसी की बात नहीं है. जो आप ग्राउंड और स्ट्रेटजी का फेस जिस तरीके से जो नैरेटिव चल रहा है, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ. ये प्रॉब्ली हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है कि हमारा गड़बड़ क्या है कि हमारा संतुलन बिगड़ जाता है. आप ज्यादा नहीं, हर एक चीज का ना जगह होती है और उससे ज्यादा जब होने लग जाएगा तो वो फिर संतुलन बिगड़ जाता है. जैसे प्रकृति में देखेंगे तो एक आप जब जाते हैं किसी वन में तो व्हाट यू सी इज irrespective of you go to a forest in Africa, you go to a forest in India, you go to a forest in US, Australia, there could be different trees, different flowers. Each one of them you'll find to be beautiful. Reason is there is a balance. In nature में always there is a balance. Similarly हमारे यहाँ पर भी there is definitely a requirement राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के भविष्य में, राष्ट्र की जो योजना बनती है उसमें शीर्ष लेवल पे, शीर्ष स्तर पर योजनाएं बनना, को समझना, एक जनमानस में उसको भी समझना ये आवश्यक है. लेकिन किंतु क्या है कि
कोई भी बड़ा काम छोटे-छोटे इकाइयों से बनता है। अब जैसे सेना का सिर्फ़ सेना प्योरली सेना का उदाहरण देता हूँ। तो सेना अगर युद्ध लड़ती है तो उसमें ये प्रत्यक्ष है कि मतलब शीर्ष के स्तर पर भी योजनाएँ बननी चाहिए और बहुत अच्छी बननी चाहिए, दूरगामी बननी चाहिए। So the greatest generals that we have are the people who had a very fantastic strategic vision और long term vision. लेकिन उसी सेना में जब युद्ध हो रहा है तो जो आखिरी सिपाही है, जो अंतिम सीमा पर मोर्चे पर खड़ा है, उसकी समझ और सोच आवश्यक है, आवश्यक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अनअवॉइडेबल दैट ही नोज हिज गेम ऑफ दैट पोस्ट. हाउ विल आई डिफेंड इट? कम व्हाट मे, he should be competent, he should have a plan, an excellent plan that too. At the same time, if given an order, सामने वाली पोस्ट को how will I go and capture it? इतना तो उसको पता होना चाहिए. You cannot win a battle by simply having a great strategy at the top and the man at this borders, this last sentry post पे जो चौकी पे बैठा है, उसको वो भी अगर उसी में रुचि लेने लग जाए, यू नो, चौकी में बैठ के लास्ट आउटपोस्ट में बैठ के वो भी यही डिस्कस कर रहा है, यू नो चीफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यू नो दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ शुड डू, दैट व्हाट द एनएसए शुड डू. Sitting there, if he can actually having mastered his work, then if he can actually think, that's actually a very, very good bonus, because then he will be able to align his small little job with a larger role. But then that cannot be at the cost of कि भाई अपना तो पता नहीं है यहाँ का और बड़ी बड़ी बातें जा रही हैं. तो वो हमारे समाज में हो रहा है कि we do not know, most of us, because the why are we talking of a, you know, conflict in international level, national level? The conflict is there everywhere, na. The conflict happened in Murshidabad also, na. The conflict Yes. happened in Nagpur also, na. The conflicts keep Yes. happening in streets and towns and cities and villages also, na. Yes. उसकी कौन बात करेगा? Simply That, having a larger strategic vision. And okay, there are people who are designed for that. There are people who are designed for that, right? There are people in the center, the government, the prime minister से लेके the defense minister, the national security advisor, army navy FO chiefs हैं, पूरा entire department है, they're all genius people. There are people who are there who are doing their job. Even so, but there is someone wherever you live, the conflict, the battle is also coming here. This they are not doing the job, ना. It is not their job. ये आपको लड़ना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा ना. तो yes. ये बहुत आवश्यक है. Just because आजकल एक फैड बन गया है that I want to look very intellectual, very intelligent, and you know sharp. एक मेरे को पहचान बनानी है. So everybody is jumping into throwing his hat into that thing. It doesn't work like that. हर एक चीज में बैलेंस होना, संतुलन होना आवश्यक है. युद्ध में भी, संघर्ष में भी, संघर्ष के हर पहलू का रास्ता ढूंढना आवश्यक है, उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है, लार्जर लेवल पे, छोटे लेवल पे. तो यहाँ पर बैठ के हमारे जैसे लोग हैं, जो अब हम रह रहे हैं, आई एम ऑल्सो सिविलियन, सो ये बड़ा आवश्यक है कि हम यहाँ की अपनी छोटे-छोटे लड़ाइयाँ जानें. ये बहुत बहुत आवश्यक है. लाइक फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो आई नो zilch about it. No, that's not very good. It's good if I know. बट जब मैं नहीं भी डालूंगा तो काम चलेगा ना. एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यार, मुझे नहीं समझ में आता, बट देयर आर पीपल ना, वो कर Yes. रहे हैं ना. देश में बड़े बड़े लोग हैं, तो मुझे नहीं भी आएगा तो काम चलेगा. लेकिन मैं कहूँ कि मुझे अपने घर की इकोनॉमी चलानी नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन, तो तब तो कैसे काम चलेगा? ये थोड़ा ना फाइनेंस मिनिस्टर आके या आरबीआई का गवर्नर आके मेरे घर की अर्थव्यवस्था तो नहीं चलाएगा ना. वो No, है, sir. दिस व्हाट आई मीन टू से. So that is where I feel I'm not critical of those people, but I also say there has to be a balance. Every narrative is, every part of this thing has to be done in a right manner. In everything you do anything, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए. आप जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ बड़े लोग होंगे. आप if you're working in a you know car manufacturing unit, larger grand vision, but एक छोटा लास्ट में बंदा एक गाइड करना, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, होना चाहिए ना. तो वो भी Yes, sir. अगर लार्जर सोचे रहेगा तो कैसे होगा ना. वो Yes, sir. दैट इज व्हाट इट मीन. दैट्स माय ओनली पॉइंट. सो आई वुड एक्सपेक्ट वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया. अगर कल को सारे के सारे सिर्फ अपना ही सोचेंगे, देश का नहीं सोचे, वो लार्जर लेवल नहीं समझेंगे, देन आई विल कम बैक द अदर वे अराउंड.
क्या ऐसे भी नहीं चलेगा? संतुलन पूरा होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ लाइक। दैट वाज वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने जो बोला इसका एक सिंपल उदाहरण हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि like someone working in a car manufacturing company is a tester, but if a tester starts to think that मैं सीईओ बन जाऊंगा, तो that doesn't work that way because the tester has been modeled into working as a tester, और हाँ, वो जो सीईओ जो काम करता है उसका एक्सपीरियंस है वहां तक पहुंचने तक, तो उसके बाद वो सीईओ बना है। हाँ, हाँ। तो बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन सर ने बताया ऑलरेडी, आई जस्ट एडेड अ पॉइंट फ्रॉम माय ओन इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली, सो एब्सोल्युटली। हाँ, वही है। यस एब्सोल्युटली। सर। So moving to the second question, sir. Sir, how did you recover your battle injuries, and how did it change your way of life today? मैं एक्चुअली आई नो देर इज मेनी टॉक्स यू हैव ऑलरेडी गिवन, सो मेरे को वो क्वेश्चंस नहीं लाने थे, बट हर वक्त ऑडियंस नया नया रहता है, तो मेरे को लगा कि एक इसका ब्रीफ होना चाहिए, बिकॉज दिस विल कवर योर पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने आर्मी में दिया, उसके बाद आपको जो इंजरी हुई, और हाउ डिड यू रिकवर एंड व्हाट हेल्प यू टू रिकवर, क्योंकि ये प्रोसेस डेफिनेटली बहुत बड़ा रहेगा, और हम जैसे जो आज के बच्चे हैं जो बारीक छोटे छोटे चीज़ों पे भी नाराज हो जाते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, डेस्टिनी ऐसी है, हम कहीं नहीं जा सकते, एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस, तो ये जो माइंडसेट है इसके वजह से मैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो हाउ वाज इट सर, योर एक्सपीरियंस, द इंजरी, एंड हाउ डिड यू रिकवर इट? देखिए, मैं जो भी कहता हूँ ना, अगर उसमें कोई टेक अवे नहीं है, तो आई जनरली डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, एंड इफ आई टॉक अबाउट इट, आई विल ऑलवेज ट्राई एंड प्रेजेंट इट इन मैनर कि उसमें कोई टेक अवे हो। जस्ट बिकॉज़ मेरी ये कहानी है, मैं सब सुनाना चाहता हूँ, दैट्स नॉट द पॉइंट। सो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। भोले बाबा की कृपा है। और वंस इसको ऐसे भी प्रेज़ेंट मत कीजिए आप या कोई भी, कि जैसे कि कोई दुर्घटना घटी हो, कोई समथिंग लाइक समथिंग अनफॉर्च्यूनेट हैज़ हैपेंड। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ व्हेन आई गॉट इंजर्ड। ओके सर। Wonderful thing. I'm so blessed that I went through this experience. I'm so blessed and so happy. वो नहीं हुआ होता तो आई डोंट नो मैं क्या कर रहा होता आज। राइट। क्योंकि पूरी इट इज ऑल डिवाइन। इट इज ऑल वेरी वेरी डिवाइन। आई टेल यू व्हाई। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज उससे शायद कुछ जो सुनने वाले हैं उनको शायद कुछ फायदा पहुंचे जीवन में। क्योंकि देखिए, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान की जो हमारे अंदर जो रहती है सीख, जो हम हमारे अंदर अर्ज रहती है कि वी वांट टू लर्न व्हाट इज ट्रूथ। यू नो व्हाट द बिगेस्ट बैरियर बिटवीन knowing something, ignorance of knowing the truth, and what we are is the माया इन बिच। तो मानस के जो विकार होते हैं, अहंकार जिसको कह सकते हैं आप, तो वो जितना रहता है, वरना अर्थात अन्यथा ज्ञान तो यही है, एवरीवेयर, जस्ट राइट देयर, ऑल अराउंड अस। The greatest and the greatest of the truth of this entire universe and cosmos is right here. हमें नहीं मिलता, हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे अंदर मानस में विकार है। जस्ट लाइक यू एंड मी आर सिटिंग, and probably if you stop talking, there'll be silence यस। in your room, wherever you are, and my room, wherever I am. But in the same room, we have a transistor or any device which can tune into a radio. There'll be music. यस। So यस that सर। means the music is here, na? Right next to our skins. The music is there all around, everywhere. It's just that we're not in alignment. The science of listening to a music has to be in perfect harmony. All that science which goes into making a transistor and the frequency and all that. So similarly is this. So if in the transistor, if the diode, triode, whatever, I'm not a science ka wo nahi hu, but anybody हम्म। from engineering background, if there is some misalignment in that, some dirt, something, so it will not, music will not come. So that विकार हमारे मन में है, अहंकार होता है, और वो मृत्यु एक ऐसी चीज है ना, द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट, मैं इसके लिए नो एनीबडी, एवरीबडी डजंट हैव टू बी अ डड लाइक मी टू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। एक बार मैं और बता दूंगा, राइट नाउ इफ यू जस्ट एक्सेप्ट डेथ एज अ फैक्ट, बोलने के लिए नहीं, मानस में, चेतन में स्वीकार कर लें, ये है, आएगा,
एंड आई एम नॉट स्केयर्ड, इट्स अ फैक्ट, मतलब ट्रुथ है ना, डेथ इज अ ट्रुथ। इफ यू Yes. एक्सेप्ट कर लो अंदर से ना, तो मृत्यु जैसे ही आप स्वीकार करोगे, द फर्स्ट थिंग टू गेट डिमोलिश्ड इज माया, मोह, Yes. अहंकार, जीरो हो जाएगा। Yes, sir. मोमेंट दैट बिकम जीरो, यू नो एवरीथिंग, Yes, sir. फिर आपको सब सिखाई देगा ना। इट्स लाइक यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ, मतलब ग्लास मेड ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट, एंड देयर मड इन दैट, and there's something written on the bottom, you can't read. Yes. Just remove the mud and you find niche something you can clearly see. So that's what it is. So that the mud, जो मडल है ना, जो गंदगी है, वो हमारा मानस का विकार है। मृत्यु में वो उड़ जाता। तो मेरे को जब लगी थी, तो आई वाज सो ग्रेटफुल टू गॉड कि बाद में मुझे समझ में आया, मेरे को तो लगा कि देयर कांट बी एनी अदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग, बट या आई सॉ अदर, ठीक है। बट आई सिंपली एक्सेप्टेड इट। आई एक्सेप्टेड कि ये तो मृत्यु है, एंड आई एम टाइम। उसमें कोई I was not putting my own color to it. Like I want to die, I don't want to die, कुछ भी नहीं था। Like होता है। I'm not telling. A lot of people go through such experiences, but uh, at times people, and even at the last moment, they want desperately, नहीं नहीं मुझे बचा लो, मर गया, नहीं नहीं यार मेरे भी है बच्चे हैं, ये है वो है, I want to। मेरे साथ सौभाग्य से इसके लिए मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। I'm grateful to God. Such thing didn't happen. The moment I got shot, I know I'm dying. Not that I wanted to die, not that I wanted to live. बस दिस इज इट, बिना लाग लपेट के यही सत्य है। इसमें मेरा कोई भी अपना मानस का चेतन, इसमें कोई रंग नहीं डालता। मोमेंट दैट हैपेंस, सब कुछ समझ में आने लगता। और उसके बाद आई वाज अवे, इट्स नॉट दैट आई वाज कॉन्शियस, आई न्यू आई हैव अ बॉडी, आई वाज नॉट अटैच्ड टू इट, आई न्यू आई हैव अ फैमिली, आई वाज नॉट अटैच्ड टू इट, आई न्यू एवरीथिंग, आई वाज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट आई वाज जस्ट नॉट अटैच्ड टू इट। So what happened is that then recovery and all will skip it, will not वो ठीक है, वो dissolve, वो सब miraculous है, सब भोले बाबा की कृपा है। When I came back into, you know, हाँ, रिकवरी में इसमें एक प्रोसेस और बताऊंगा कि इन बिटवीन कई बार ऐसा लगा कि मुझे जब मेरे को मतलब गोली लगने से लेकर अस्पताल जाने तक की यात्रा में कई बार ऐसा लगा कि मैं जा रहा, एंड आई फेल्ट आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, Mhm. आई वाज ऑलवेज कमिंग बैक, समथिंग वाज हैपनिंग एंड आई वाज कमिंग बैक। Then in the when I reached the hospital again, I felt कि I'm going ICU में. That time I actually believed that I'm going because I was sick. So I don't know whether it was they made me unconscious or I was actually I still don't know about that. So I took okay, I'm dying. Let me go. So, but actually speaking, I was became unconscious and there was an operation. And after operation, I found myself on the life support system. And in the life support Okay. system, when I regained consciousness, I found myself on the life support system, with everything, all those gadgets and pipes. And now, what happened there is that the doctors and nurses were all around my bed, and they were watching all those monitors and all this. What's happening? No, it was like a scoreboard. Mhm. कि कांटा इधर जा Yes, sir. रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, between death and life. And they were playing the game, and I Yes. was a spectator. I was a spectator watching. टेंशन उनका है, मेरा थोड़ा था. I couldn't have done. मेरा क्या था कि मेरा क्या था कि I could not, I didn't have strength to even move a finger. इतना भी नहीं कर सकता था to even give an expression like this. Speak की तो बात ही छोड़ो. As it is, the bullet had gone through my throat. तो वैसे Yes, भी नहीं sir. बोल सकता. So I was lying, आराम से पड़ा हुआ था मैं. बट फिर क्या हुआ कि मेरे को आई स्टार्टेड लूजिंग ब्रेथ अगेन. Oh. हियर आई एम lying on the bed with the doctor, nurse, everybody around me. I'm lying. I can't even communicate to them. I can't even raise a finger. I can't even give an expression. Something कुछ नहीं कर सकता था मैं. Like if somebody would have looked, obviously they were looking at me. They would have felt कि perfectly comfortable, आराम से लेटा हुआ बंदा. And मुझे सांस नहीं आ रही है. तो मैंने कहा यार ये तो फिर जा रहा हूँ. तो मैंने कहा यार जा चलो चलते हैं. This is final now. But suddenly I remembered कि क्या बोलते हैं, यार इससे पहले जितनी बार भी लगा कि मैं जा रहा हूँ ना, आई डिडंट रिमेंबर गॉड. मैंने भगवान को तो याद ही नहीं किया. मैंने कहा Mhm. यार गुड, दैट्स प्रोबब्ली द रीजन गॉड इज सेंडिंग मी बैक. मैं आउट होके तो बार-बार जो है ना पवेलियन से वापस भेज रहे हैं कि तू प्रोसीजर से आ जा ठीक से. तो मैंने कहा इस बार बोले बाबा कोई याद बात किया, ज़्यादा थोड़ा हुआ. Mhm. सही है, सही है यार, सही जा रहा हूँ. सो ऑल द लिसनर्स जितने भी सुनने वाले हैं,
एक अपना मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन तो दे दे एक मैनिफेस्टेशन कर हुँ। लेना इच्छा अपने अंदर, बहुत सौभाग्यशाली रहोगे। अब मैं मुझे पता नहीं अगली बार मेरे को याद आएगा कि नहीं आएगा। पिछली बार तो आखिरी समय में ईश्वर याद आ जाए, बहुत बड़ा भाग्य होगा। एक इच्छा हुँ, आप हुँ। मन में डाल लेना जब भी भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु बाकी उस दिन तो पक्का याद आ जाना। सो दैट वाज़ सो देन आई थॉट ओके डूइंग दैट आई लूज़ ब्रेथ मैंने कहा ओके इट्स ओवर। हाँ, मैं ओवर एंड देन थोड़ी देर बाद में मेरे को फिर होश आया, तो कॉन्शसनेस आई, चेतना आई। तो आँख बंद है मेरे और मैं सोच रहा हूँ कि यार मर तो मैं गया हूँ। अब टाइम मुझे ओके। पता नहीं इन दोनों के बीच में कितना टाइम हुआ है। हुँ, हुँ। अब मर तो मैं गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ ऊपर और मेरे को ले आया य यमराज और मैं अभी आँख खोलूँगा, तो ये बगल में मिलेंगे खड़े हुए यमराज। बिकॉज़ ही इज़ बट मी ना हुँ, हुँ। पकड़ के लेके आए हैं, ये लो। और मैं कहा अभी येस सर। आँख खोलूँगा और सामने मिलेंगे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को बाप याद रे! मैंने कहा ये इसने फोड़ा हुआ रजिस्टर कर्मों का। अब मैं पैनिक होने लगा। मैंने कहा यार ये तो सारा उल्टा काम है। जितने कर्म पूछेगा, तो सब उल्टा काम है मेरा। ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट आई हैव डन स्टार्टेड कमिंग टू माइंड। सो मैं वाज़ पैनिकिंग ये कहीं नरक ही भेजेगा मेरे को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आई एज़ आई टोल्ड यू आई डोंट जनरली आई स्पीक एवरीथिंग बिकॉज़ देयर इज़ अ लेसन इन इट। So, deviyo Sajjano, ladies and gentlemen, anybody and everybody who is listening, please understand. At the last moment, it is all the wrong deeds जो बुरे कर्म हैं आपके, वो आपको याद आए. They will become, they just come राशि. आप you can't escape that. एंड मैं आपको क्या कर रहा हूँ? मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ. तैयारी कर लो. दिस इज द अल्टीमेट इंटरव्यू दैट विल हैपन. Please start preparing for it. मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ. Now you'll regret it even more after having heard this, because then हुँ, हुँ। भगवान बोलेगा बेटा तुमको एक बंदा भी भेजा था बताने के लिए. फिर भी नहीं सुधरे. तुम फिर भी वही काम सर करके आ रहे हो, क्योंकि मैंने एक बंदा भेजा था बताने के लिए कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाएँगे यहाँ पर, और फिर भी तुम तैयारी सर करके नहीं आ रहे हो ना समथिंग लाइक, तो आप इसलिए बोल रहा हूँ. सो आपको प्रॉफ़िट बना देना चाहिए फिर अभी नया। हाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ सबको कि कहीं गलत काम मत करो, ऊपर सारा हिसाब होगा. बट हाँ, नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वन्स आई फाइनली केम बैक, हाँ, तो मैंने फिर देखा, तो मैंने थोड़ी देर बाद ये सब मैं सोच ही रहा था. तब मुझे अचानक याद आया मेरी पहली जो बटालियन थी वो राजपूताना राइफल थी जिसका मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा. अब मैं ये सब सोच ही रहा हूँ, तो वो जैसे वीर भोग्या वसुंधरा याद आया. मैंने कहा यार, वीर भोग्या वसुंधरा होता है, यानी कि जो वीर गति को प्राप्त हो, उसको स्वर्ग मिलता है. मैंने कहा अपन तो बेटा वीर गति के रूट से आ रहे हैं. मैंने कहा भाई अपना तो वीआईपी पास है, कोटा है, रिजर्वेशन है स्वर्ग में डायरेक्ट, चिंता ही नहीं है. मैं कॉन्फिडेंस हो गया, अरे मैं अभी आँख खोलता हूँ, चित्रकूट उधर रजिस्टर करो बंद, अपना डायरेक्ट एंट्री है स्वर्ग का, ये वीआईपी पास है अपना भाई. हमने फिर कॉन्फिडेंस में आँख खोला, देखा यार ये तो बढ़ गई है, टेक ऑफ ही नहीं हुआ मामला, या तो यहीं पर हूँ. एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आई एम रियली टेलिंग यू, आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड एंड सैड दैट आई हैव नॉट डाइड. आज तक व्हाई सर? पश्चाताप है इस बात का कि भाई स्वर्ग छूट गया यार. अब ये बड़ा मुश्किल काम है, अब कर्म वाला रास्ता तो बड़ा मुश्किल है, वो शॉर्टकट से मुझे मिल रहा था. वो वीर गति के मार्ग से जा रहा था मैं. बड़ा रिग्रेट है आज तक. वो आई एम ट्राइंग बट दिस इज़ गोइंग टू बी, ये थोड़ा मुश्किल है. इससे एक और पार्ट और बता रहा हूँ, कभी जीवन में कहीं देखो एक और बात बताता हूँ, ये वीर गति जो है ना, ये सैनिक का वो नहीं है, इसपे डोमेन नहीं है, खाली रिजर्वेशन नहीं है सैनिक का, कि प्रिविलेज सिर्फ सैनिक का नहीं है. ये अगेन ये मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया, आर्मी, सिविलियन, ये हमारे देश की पुरातन परंपरा में ऐसा कुछ नहीं था. आप जब भी अधर्म से लड़ते हो, अधर्म से युद्ध करते हुए यदि आपको मृत्यु प्राप्त होती है, तो वो वीर गति है. यस, तो यस। आपको जब भी जीवन में ऐसा मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेट इंटू अ सुसाइडल मिशन, बट प्लीज डोंट मेक, आई एम ट्राइंग टू शैटर योर फियर ऑफ फाइटिंग एविल. तो फिर वो आता ना, यू फाइट टू विन,
Go with that 100% intention to fight to win and destroy the evil. That should be your sole aim. But just in case that fear comes, यार कहीं अपन टपक गए तो for that I'm telling you, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय, या तो तुम युद्ध में मरकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे या विजयी होकर पृथ्वी पर राज करोगे। इसीलिए तुम दृढ़ निश्चय कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। टेक दैट एडवांटेज वेरेवर यू गेट। यहाँ भी अपनी विन, यहाँ भी अपनी चित भी अपनी पट दिया। सो दैट इज वन पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज दैट then after that when I came back to life I knew अपनी जाना तो I am no different than anybody here। मैं ऐसा कोई नहीं हूँ, मेरे अंदर फिर वही माया मोह दुनिया का चढ़ गया है। बड़ा साधारण तुच्छ व्यक्ति हूँ, सेम हूँ मैं, No, राइट। no, sir. उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क मैं बता रहा हूँ कहाँ है। अब फर्क ये है कि मैंने वो एक बार जो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का, प्रोबेबली अल्टीमेट उससे भी कुछ होगा ऊपर तो पता नहीं, बट मेरी मन मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उसमें प्रोबेबली द हाईएस्ट लेवल, वन ऑफ द हाईएस्ट है, वो मैं चख चुका हूँ। नो इट्स समथिंग लाइक व्हेन यू आर वेरी यंग, 2021 or any younger days of your life, and you come back after a run or a sport or a gym or something like that, if you just think, हर व्यक्ति जो मेरी आयु का है या मुझसे बड़े हैं, तो शायद आपको एक दिन याद आ जाए कि उस दिन यार आफ्टर दैट गेम ना, physically health wise I felt like god yaar, every atom and molecule was like in bliss। आज रोग नहीं है, आज आप अस्वस्थ नहीं हो, बट आपको पता है यार वो उस दिन वाला बात जो है ना, वो नहीं है। दैट डे व्हेन आई आफ्टर दैट रन आफ्टर दैट गेम, द वे आई फेल्ट, आई एम, वो तो बात नहीं। सो यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ योर व्हाट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ हेल्थ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, राइट। Yes. So, not from the diagnostic chart of the hospital. Diagnostic was saying, everything is good, you are healthy. वो नहीं. From your experiential, you have a reference point. That was something. Yeah. So I have a reference point. So now what I do is, I everything जो भी मैं बोलता हूँ, I उस background से relate करके बोलता हूँ. So what happened is when I came back into this world, now I was connecting everything from that point. So then I felt कि यार यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं वो गलत है, हमारी परिभाषाएं ही गलत है, हमारी व्याख्याएं ही गलत है। और मैं उन विषयों की बात कर रहा हूँ, वो व्याख्याएं, वो परिभाषाएं, दो डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन which are so predominantly universally accepted by mankind। Great authors, great philosophers, great leaders have been giving those definitions and explanations, and great best-selling books of this world are talking about them। मेरे को लग रहा था ये तो गलत है। I began in the video, मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है गलत है। So it took me some time since that from that time the journey began। So initially I was not opening up because मुझे लगा था यार when everybody is saying one thing, मेरे को दूसरा लग रहा है तो probably पता नहीं शायद मैं ही गलत हूँ या पता नहीं, but yeah, but because I was connected, अपने आप में अंदर convinced था। So I didn't know what is right, but yeah, I knew this is wrong। जो थोड़ा बहुत समझ में आता जा रहा है, और जब मुझे लग रहा है कि इतनी विवेचना कर ली है कि मैं इसको अब बता सकता हूँ, तो वो मैं बोलने का साहस करता हूँ। तो प्रोबब्ली दैट्स वेयर यू फील दैट कभी-कभी लगता है कि मैं बेबाक बोलता हूँ, तो बेबाक कुछ नहीं है, जो वही है वो लगता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। दैट सर आगे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल ब्रीफ में मेरे को जानना था कि जब ये इंसिडेंस हुआ, हुँ, तो आप कहाँ पे थे और ये कैसे हुआ? आई मीन एट व्हिच कश्मीर में था सिचुएशन मैं, व्हाट यू आर फ हुँ, हुँ। कश्मीर में था, 2000 की बात है, और आतंकवादियों से पोस्टेड देयर इन राष्ट्रीय राइफल्स, हुँ, हुँ। काउंटर इंसर्जेंसी रोल में थे हम। तो बस वो खून खराबा तो है, तो एनकाउंटर हम भी करते थे, वो भी करते थे। आई हैड अ ग्रेट सेट ऑफ टीम ऑफ माय मेन। तो मारते हुँ, बहुत हुँ। थे हम। तो अब ऐसा है कि फ़िल्म तो है नहीं कि हम ही मारेंगे, वो भी मारेंगे। और हम हिट लिस्ट में थे, तो ठीक है। मेनी अटेम्प्ट्स आई सर्वाइव्ड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बट या ये वाला में लग गया है, घेर लिया था हमने आतंकवादी को एक गाँव में, एंड रात को हमने घेरा, सुबह-सुबह मैंने अनाउंस किया कि भाई आ गए हैं। तो हमारी वो है ना, एक रेपुटेशन बन जाता है। काम कोई करे, नाम कमांडर का होता है ना?
Mhm. So my men were too good, all credit to them. But because I was the company commander, so हमारे नाम का टेरर था आतंकवादियों में। ये कैप्टन बड़ा खतरनाक है। तो हमारी आवाज़ सुनते ही थोड़ा घबरा गए लोग बाग। तो घबरा गए Mhm. एंड दे वर वेरी कन्विंस्ड वी हैड अ रेपुटेशन कि वंस वी गेट देम वंस वी सराउंड देन देयर इज़ नो पॉइंट मतलब इट्स जस्ट दैट हमको पता करना था कि एक बात पता चल जाए कि इस गाँव में किस घर में है। यू नो थोड़ा इनिशियल वो कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से है, किधर है, इतने घरों में कहाँ से आवाज़ आ रही है, किधर से गोली चल रही है। बट वन्स वी आइडेंटिफाई दैट उसके बाद my men were too good. In the next 45 minutes, we would always be dragging the dead bodies out. So that is the reputation we had. So they didn't have any option, so they decided amongst themselves. ये बाद में मुझे पता चला. Because whatever conversation happened there, in whichever house they were, so वो बाद में मेरे सीईओ को पता चला कि this is what happened, and they decided if the only way we can escape is to इस कैप्टन को गिराना पड़ेगा. So couple of them were, you know, um, Mhm. dip, couple of them were detailed. Detailed क्या? Three of them volunteered कि ठीक है, we'll go and die. As it is सारे मरने से अच्छा हम जाते. So Mhm. then that's how that got me, and then they all like charged at me. So I could get, we could bring down two. Third one got me. Yeah. हाँ, क्योंकि वैसे भी उनको मालूम ही है कि इंडियन आर्मी जब आ जाती है वहाँ पे वैली में तो दे हैव टू रन और डाई, देयर इज नो अदर Yes, yes. ऑप्शन फॉर देम एनीवेज। Yeah, yeah. तो We are in the business of death now. They want us, हाँ, we want this. So that's the soldiering is a profession of death. यस सर, Uh, यस सर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, yeah. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को जो लगता है कि आज का जो डिस्कशंस हम करेंगे उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है, जो आपने पहले बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट था और अब ये दूसरा सेकंड टू द प्रायोरिटी। तो व्हाट डज शत्रुबोध मीन टू यू सर, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट नाउ? क्योंकि जो हो रहा है सोसाइटी के उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाई शत्रुबोध इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट। शत्रुबोध ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ना मैं मृत्यु के अनुभव से निकल के आया, तो उसमें एक चीज़ है, एक मनुष्य में एक सामर्थ्य होना चाहिए कि जो है, जैसा है उसको स्वीकार करो। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक बंदा इंटेलेक्चुअल बनना चाहता है। एवरीबॉडी इज़ फ्री टू हैव एन ओपिनियन। ये एक वेस्टर्न नैरेटिव चला है, एवरीबॉडी इज़ फ्री टू हैव एन ओपिनियन। इट्स वेरी गुड टू हैव एन ओपिनियन, बट हो क्या रहा है कि ओपिनियन आने के बाद चिपकाव हो जाता है, उससे ईगो जोड़ लेते हैं। अब यही रखूँगा। आई हैव टू प्रूव इट टू बी रॉन्ग इवन इफ द you know however destructive that opinion is or however far moved away from the truth that is. सत्य ये है कि पृथ्वी पर जो है सदैव जो है धर्म और धर्म तो सदैव सदैव रहता है, पाप हमेशा रहेगा। सतयुग में भी था तो आज तो है ही है। दैट इज वन। और आपके सामने तो वो जो पाप अधर्म है वो आपका शत्रु है। और आप मानो या ना मानो, एक बात आप मान लो, you may whatever you may like to believe, I am a peaceful man, I'm a peace loving man, you can keep giving labels. So you can decide that I want to be identified as a sticker chipka diya, peace loving man. Friends, I want to be friends with them. You can go ahead and want to have that tag. But whatever you want to believe about yourself, you may not think that the man next to you is your enemy. That's your choice. But if the man next to you thinks you are his enemy, you still have an enemy, whether you like it or don't like it. आप टैग लगा यस। घूमते रहो। If he thinks you are his enemy, you have an enemy. So आप उससे आंख बंद करना है, it is to your own peril. It could be that you see, you can ignore one-sided love. You can. I'm not getting into that topic. हम्म। Uh, but you can't ignore one-sided hatred. If you do नो। that, you're doing at your peril. तो ये अगेन हिंदी में बोलता हूँ कि आप ये माने या ना माने कि आपका कोई शत्रु है या नहीं है, लेकिन यदि सामने वाला कोई और कहीं पर आपको अपना शत्रु मानता है तो आप शत्रु है। ये सत्य है, ये तथ्य है। आपके मानने न मानने से नहीं होता, ये तथ्य है। राइट, ये तथ्य है। एक तरफा प्रेम की अवहेलना आप कर सकते हैं, एक तरफा शत्रु की अवहेलना, शत्रुता की अवहेलना आपने की तो आप अपने विनाश करने बन जाते हैं। और अब जब किसी ने मान लिया है कि वो आपका शत्रु है, कारण चाहे जो भी हो, और आज की डेट में मैं एक बात बताता हूँ गौरव आपको।
शत्रु होने के बहुत, देखो शत्रु जब होता है ना, शत्रुता होना क्यों मानस का विकार है, वहाँ से शत्रुता प्रारंभ होती है। तो कोई हो सकता है कि लालच के, लोभ के कारण आपका शत्रु, आपके पास धन है, सामने वाले के पास नहीं है, तो वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपको लूटना चाह रहा है, वो आपका आप महिला हैं, कोई व्यक्ति वासना से प्रेरित है, वो आपके साथ अनाचार करना चाह रहा है, तो यू हैव एन एनिमी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जो कि शत्रुता के भाव को जन्म देती हैं। और लेकिन ये सब जो है ना, बाकी सारे, ये सब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, समाप्त हो सकता है। राष्ट्रों के बीच में देखो, राज्यों के बीच में हमारे राजाओं ने भी, भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एक राजा दूसरे राजा खूब लड़े। क्यों लड़ता है एक राजा दूसरे राजा से? एक राज्य दूसरे राज्य से क्यों लड़ता है? लालच से लड़ता होगा, मुझे उसका धन चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मुझे पूरा साम्राज्य स्थापित करना, आई वांट टू बी द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, सो नो दैट्स द रीजन आई वांट टू डू इट। अलेक्जेंडर, दिस सिकंदर, जिस वजह से, दैट वाज द ड्रीम दैट ही हैड। बट ये सारे के सारे कारण जिससे कि राष्ट्र लड़ते हैं, सभ्यताएं लड़ती हैं, अ, ये जब कारण खत्म हो जाएंगे तो शत्रुता खत्म हो जाएगी। और इतिहास में कई हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप के अपने देश आपस में लड़ रहे थे, नाउ दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, द रीजन इज नो मोर देयर। आई एम टेलिंग यू, ये मैंने आज से 3-4 महीने पहले एक पॉडकास्ट में कहा था व्हेन ऐसा कोई वो नहीं था कि देयर कुड बी अ टाइम इन द पीरियड इन द हिस्ट्री, प्रोबेबली हमारे बाद हो, शायद मेरे बाद हो, जहाँ भारत और चीन जो है वो अच्छे मित्र बने। कारण समाप्त हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। बट जब शत्रुता इस कारण से है कि मुझे तुम्हारी आस्था स्वीकार, हुँ, हुँ। तो उसका क्या अंत? जब वो ये कारण से है कि मुझे तुम्हारी आस्था स्वीकार नहीं है, मेरा ईश्वर ही श्रेष्ठ है, ईश्वर के जिस रूप या निराकार को, जिसको भी मैं, जैसा भी, जिस रूप में भी, जैसे भी मानता हूं, वही श्रेष्ठ है वो। और ये मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, मैं अपनी ये मान्यता मैं आप पर थोपना चाहता हूं, और ये अनिवार्य कर मैंने मान लिया है कि मुझे आपको ये स्वीकार करवाना है, और आपकी आस्था को मुझे नष्ट करना है। जब यही ध्येय हो, तो ये युद्ध तो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत और चीन हो देखना भविष्य में मित्र हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान कभी नहीं होंगे। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस कारण से शत्रुता रखता है कि तुम्हारी आस्था और मेरी आस्था में फर्क है, और इस वजह से, तो ये शत्रुता है, रहेगी, थी, है और रहेगी। और इससे बड़ी, एक आइंस्टाइन जो थे ना, उन्होंने एक बात कही थी कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर इनफाइनाइट इन दिस यूनिवर्स, one is the expanse of the universe, and second is human stupidity. And then he said, I'm not sure of the former. So what he meant is, human stupidity the pakka infinite, and of all the things that humans have invented, stupid thoughts and ideas that humans have invented, they've invented plenty of them, countless of them. The two most stupid thoughts, and उस दोनों में भी मैं बताऊंगा कौन सा बड़ा है, which is which will actually lead to, destruction of mankind. One is harming the environment, and second is, my God is the only God, your God is no God. I want you to accept my God, otherwise I'm going to destroy you. Yes, And sir. out of both of these, the second one is far dangerous, because the first one may, at least acceptance level पे, discussion level पे, people have accepted it. Yes, harming the environment is bad. At least वहां तो हो गया। अब उस पे एक्शन कर रहा है, lot of people are doing it, lot is to be done, but at least acceptance level पे हो गया। Yes, environment को harm नहीं करना चाहिए, we should protect it. Even if it is a lip service, so what? But lip service तो at least है। Second one में acceptance level भी नहीं है। No, sir. वो 1400 साल हो गए, मोर देन 1 billion लाइव्स लॉस्ट, स्ट्रेट किलिंग की बात कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा। Yes, sir. Yes, आई sir. एम नॉट टॉकिंग उसका आफ्टर इफेक्ट्स में कितना हुआ, एक आदमी मरा तो उसका परिवार का क्या हुआ, ये क्या हुआ, कितने घर लूटे गए, कितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉय किए गए, कितना टॉर्चर किया गया।
एंड कितने रेप्स हुए, डिस्ट्रक्शन, बट आई एम नॉट सिंपल बिलियन लाइव्स लॉस्ट स्ट्रेट अवे, Yes, sir. still counting, it's still happening, still Yes, sir. this stupid species called man is not even accepting, like environment में at least accept तो कर लिया है, एक्शन करे ना Yes, करे, sir. ये गलत है। मैं बता रहा हूँ just for this one thing, actually both the things, because no other species on this planet does this two stupid things. No other species No, sir. harms the environment, does nothing to harm the environment, and no other species is actually killing अपने ही species के दूसरे व्यक्ति को because of some stupid difference of faith. No other species. For just this thing, I'm telling you, we may be under that illusion that we are probably the most intelligent species on this planet. I'm telling you, we are the most stupid and the biggest foolish species on this planet. And this, you got to accept it. And you got to accept it and be ready to fight it. ये आपका कर्तव्य है। मैं एक और बात बताता हूँ क्यों कर्तव्य है। क्योंकि आपको एक ही चीज जो है बाकी जीवों से अलग करती है। अगर आप मनुष्य कहलाना चाहते हो तो कितने जो कर्तव्य है एक नॉर्मल किसी भी जीव के, उसमें फर्क क्या है? बाकी भी सब खाना खाते हैं, बाकी भी जैसा मर्जी हो आसरा बनाते हैं, घोंसला बनाए, चूहा बिल बनाए, जो भी बनाए, हम भी पहले वही Yes. करते थे, आदि मानव भी वही करते थे बिफोर वी वर नो, हम भी भोजन, वी वर हंटर्स गैदरर्स एंड सम केव में हम भी घर बनाते थे। बाकी भी Yes. प्रोक्रिएट करते हैं, हम भी प्रोक्रिएट करते हैं, राइट? सारे काम हम वही करते हैं। बाकी जो बाकी में धर्म अधर्म का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दायरा है, व्हाट इज धर्म? इट इज अ कॉस्मिक लॉ। द कॉस्मिक लॉ का जो दायरा है उसके अंदर रहना है, एंड उसको समझ के व्हाट दैट इज व्हाट आवर एंशिएंट ऋषिज डिड। दे सिंपली अंडरस्टूड, जब तप किया तो बैठ के they understood the cosmic law, and once they understood it, then they came back and explained and made framed guidelines for mankind to live in every aspect, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, एवरी एस्पेक्ट, सिपाही का धर्म, न्यायाधीश का धर्म, सबका, कि ये धर्म बोलते थे, इसको धर्म बोलते थे। ये सब दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड इज धर्म। धर्म का किसी भी ईश्वर के रूप या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट दी कॉस्मिक लॉ, राइटियसनेस जिसको बोलते हैं ना, इट इज दैट इज व्हाट। तो इसीलिए तो बोलते थे ना, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, इसका कोई पूजा से कोई लेने देना नहीं है। तो जिससे कि आप उस दायरे में रहो, सो दैट यू आर इन दैट फ्रेमवर्क, जो है वो दायरा, जो बाउंड्रीज है उसके अंदर आप काम करो, दैट इज व्हाट इट इज। तो क्योंकि हमें ये विवेचना करने की मनुष्य में शक्ति आ गई, उसको समझ के और उसके अनुरूप काम करके ऊपर जाने की शक्ति आ गई। लेकिन जब विवेचना करने की शक्ति आ गई तो हम में से ही कुछ लोग उस बाउंड्री को तोड़ने का भी सामर्थ्य रखने लगे। तो जो दायरे से, उस बाउंड्री के जो मर्यादा से बाहर जाने लगे, वो अधर्म हो गया। जो उस दायरे में रह रहा है वो धर्म है। तो चूंकि ये सामर्थ्य जो है वो ब्रह्मांड के जो नियम के दायरे के बाहर जाने का सिर्फ मनुष्य में है, तो अधर्म सिर्फ मनुष्य में होता है। तो ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानस की है कि वो अधर्म से ले। बाकी जीवों की तरह हम बाकी अदरवाइज हमारा भी काम है, खाओ पियो प्रोक्रिएट करो बस। बट ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, देन यू आर नॉट अ ह्यूमन। क्योंकि बाकी जीवों में अधर्म होता नहीं, तो उनको अधर्म अधर्म की लड़ाई लड़नी नहीं। हमारे में ही होता है। अगर आप नहीं लड़ रहे हो तो फिर आप यू आर एज गुड एज अ डॉग ऑन द स्ट्रीट। तो दैट इज व्हाई इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट। इसमें एक और बात बताऊंगा मैं आपको। नो, बिग वाई एम टेलिंग यू कि आपने शत्रुबोध बोला, तो शत्रुबोध है तो फिर योद्धा भाव आना चाहिए। हाउ डू यू डील विद एन एनिमी? आप पहले प्रेम से समझाओगे, डू एवरीथिंग, बट देन आप इफ यू आर वीक, देन नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, राइट? Yes. इवन इफ यू वांट पीस, यू गो टू स्पीक पीस, टॉक अबाउट पीस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? Yes, sir. तो अब क्या है कि अगेन आई विल कम बैक टू द ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ every species. So if you again look back,
दी ओनली वन पर्पस, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व एवरीवेयर, कहीं भी जाके ऑब्जर्व करो जस्ट कूलली कर क्या रहा है, एक हाथी कर क्या रहा है जंगल में, एक हिरन कर क्या रहा है, एक शेर कर क्या रहा है, और दी लाइफ इन दी सी, व्हाट आर दे डूइंग, ओनली वन पर्पस, सिंगुलर, everyone is here to ensure survival of its species. Yes. Whatever they are doing is, pointing towards that one singular aim is survival of the species. There's no other purpose. Now to survive, as I told you again, I'll repeat, you go to collect, you go to take care of food, you go to take care of shelter. Some do, some do not do, but एक है. Third is procreate. वो create करेंगे तभी तो survive करेंगे. There is a fourth aspect which everyone does, is they act when their survival is threatened. Now ये Yes. चार बातें जो मैं बता रहा हूं, ये वो ज्ञान है, कभी कभी होता है ना कि हमें डाउट रहता है यार इतना ज्ञान मनुष्य ने जो विकास किया है चेतना के आने पर, लाइक वी वर एट द लेवल ऑफ अदर एनिमल्स once upon a time. From there, when we started moving, we started collecting and a lot of knowledge, gathering a lot of knowledge, inventing, discovering, and whatever, framing a lot of knowledge. So for a moment, just forget it. Let's go back to where we Yes. were at, like all other animals. So वहां पर जो ये जो एम है, ये तो कॉस्मिक नॉलेज है ना, ये तो इसको आप भगवान बोलो कुछ भी बोलो, ये तो ब्रह्मांड का नियम है ना, ब्रह्मांड का आदेश है ना कि आपको ये करना है और हर जीव कर रहा है, जस्ट टू एक्ट टू सर्वाइव एज स्पीसीज. उसमें बाकी तीन बताए, एक फोर्थ है टू एक्ट व्हेन योर सर्वाइवल इज थ्रेटन, राइट. नाउ ये तो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय आदेश है, ये ब्रह्मांड का आदेश है. हम में से कुछ लोग ये चौथे वाले को जबरदस्ती इरेज कर रहे हैं, जबरदस्ती, पता नहीं पोंगा पंडित महाज्ञानी इंटेलेक्चुअल बन के, नहीं नहीं रॉन्ग 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 रॉन्ग, वो कुछ भी करते जाए, हमने कुछ नहीं करना, वी गो टू कीप टॉलरेटिंग, ये वो क्या वो बोलते हैं वो टॉलरेंस, ऑल दैट, आई डोंट, ऑल दैट नॉनसेंस इज बीइंग स्पोकन अबाउट, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस. अरे ये तो भैया मूल ज्ञान है, ब्रह्मांड का आदेश है, व्हाट टू कीप डूइंग दिस. नाउ I tell you, fight not for the sake of fighting. Fight only for the sake of survival of the species. I'll give you an example from the nature. Suppose there's a tree on which there are hundreds of birds sitting, and they're good, stronger, bigger ones. You go under the tree and just make a twist. They'll all fly off. Yes. Why do you do that? This is not cowardice. बोले यार एक ऐसे मारा उड़ गए, ये डर गए सारे के सारे. No, this is not cowardice. This is cosmic intelligence. हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं ना, ये नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमको भगवान ने दी उसकी बात कर रहा हूँ, पहले वही हमारा, उसी को हमने निकाल दिया पहले. तो ये Mm-hmm. कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दे ऑल फ्लाई बिकॉज दे फील देयर कुड बी अ थ्रेट टू आवर सर्वाइवल. तो भैया उड़ लो यहाँ से, ठीक है, बिकॉज इस पेड़ पे कुछ है नहीं ना उनका, नॉर्मल पेड़ है ना, क्या है, इधर उड़ के Yes. भाग जाओ, क्या दिक्कत है, इट्स वेरी गुड, दैट्स व्हाट इज राइट. बट नाउ टेक अनदर सिनेरियो. I'm not talking of hundreds of birds. I'm not talking of bigger birds. There could be a small birdling on a tree or wherever. It's got a nest. घोंसला है उसका, उसमें उसके अंडे हैं. And now there is a cobra which is crawled. You see that bird will now fight. Yes. Now the bird will fight. वो कोबरा फाइट करेगा. पहले ताली पे बड़े बड़े हजारों 100 चिड़िया उड़ गए, अभी छोटी चिड़िया भी लड़ेगी, बिकॉज पहले वाले में स्पीसीज को खतरा नहीं था. Yes. एंड देयर इज नथिंग. पेड़ में है क्या, कुछ नहीं है ना, छोड़ देना, ऐसे पेड़ 50 में लेंगे, वही बड़ी टेक पंगा. दैट्स नॉट फियर, दैट्स नॉट cowardice, that is natural cosmic intelligence. But in the second case it will fight, and there's no difference between two birds. हमारे बोलते हैं ना ये आदमी साहसी है, ये नहीं है. ह्यूमंस में होता है ना, there are no Mm-hmm. two birdlings will behave differently. Every bird will fight. Yes. उसकी स्पीसीज है वहां पर. भाई साहब, आपको यहाँ पर समाप्त करने की, आपके आने वाले पीढ़ियों को समाप्त करने की कुछ लोग सोच रहे हैं, विचार Yes. बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और आप बोलते हैं कि यार मैं शांति से रहूं.
आपकी वंशजों को आने देना नहीं चाहते हैं, उनको खत्म करने की कोई बात कर रहा है बिकॉज़ ऑफ योर फेथ। व्हाटएवर बी द रीज़न, इट कुड बी फेथ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सिंपल एनिमिटी आल्सो। ज़मीन का झगड़ा है, एक गाँव को बोला सारे इसके सारे बाल-बच्चे ही खत्म करूँगा तो मेरे इसकी ज़मीन जो है, इसकी भी ज़मीन भी मेरे बच्चों को मिलेगी। 2 भाई हैं और वो सोचेंगे ज़मीन का झगड़ा है, तो बोले इसके बच्चों को ही मार देता हूँ, तो इसकी भी ज़मीन मेरे बच्चों Yes. को मिलेगी। I mean, even if that reason, तो भाई समवन इज़ स्वेयरिंग टू डिस्ट्रॉय योर जनरेशन, देन यू फील दैट आई एम पीसफुल, मेरे ये शत्रु नहीं है, मुझे योद्धा भाव की आवश्यकता नहीं है। व्हाट स्टुपिडिटी मैन! क्या अंग्रेज़ी बोल रहे हो, कुछ भी बोलो यार, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख। Yes. और इसके लिए कोई महाज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड का ज्ञान दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे ये सो कॉल्ड जो हमने एनवायरनमेंट बना रखा है ना? एक आर्टिफ़िशियल सा, कृत्रिम सा बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना रखा है। इसमें भी आज एक बच्चा जन्म लेता है, इसको यहाँ से बाहर निकालो और जाकर पालो। कोई ज्ञान मत दो मानवता उसको। जस्ट गिव द चाइल्ड फूड and protection from initially, because it's not be able to fight those other things, and let it grow without any gyan, let it grow like every other you know um, बाकी जीवों के जो बच्चे जैसे बड़े होते हैं। This child will know how to fight Yes. automatically। ये कॉस्मिक ज्ञान है यार। The child will know how to eat। बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन पे लगाते ही दूध पीना आता ना उसे, ट्रेनिंग दिया क्या किसी ने? ये ब्रह्मांड का सिखाया हुआ है। टू फीड योरसेल्फ। आप कुछ मत, इतना आजकल इवन इन सेक्स एजुकेशन तुम कुछ मत करो। एवरी चाइल्ड विल ग्रो अप नो टू नो हाउ टू प्रोक्रिएट, एवरी एनिमल डज। Yes. ये बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ आए हैं भाई हम सारे के सारे। हर नई चिड़िया जानती है घोंसला बनाना विदाउट ट्रेनिंग। तो जिसका जीव का जैसे जैसा है वो सब जानेगा और वो लड़ना जानेगा। ये हम जबरदस्ती इसको डीप प्रोग्राम कर फालतू का ज्ञान दे रहे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्लीज डू गेट बैक टू एटलीस्ट जो ब्रह्मांड ने हमें जिस ज्ञान के साथ जन्म दिया है, जन्म, पहले उसको तो स्वीकार कर लो, उसके ऊपर बिल्डअप करो। यस, व्हाट वी शुड डू इज, आई एम नॉट टेलिंग, वी हैव डन आल्सो, व्हाट वी शुड डू इज these four things which I told you ना, food, procreation, shelter and this, we should have used our knowledge to strengthen these four pillars, and we've done that to some extent। you see, from hunter gatherer हमने एग्रीकल्चर ले आए, फैंटास्टिक। from caves to better homes, fantastic। we've done also, right? But हाँ, एक Yes. लिमिट के ज़्यादा हमने जाते भी, the topic is not agriculture and these things, so we'll not get into that। But ये that is what I'm trying to say। ये 4 को हमने strengthen करना है, simple common sense से, please understand it। Yeah। Wonderfully explained, sir. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है सर।